Hello students, I Kronal Parmar welcome you all for class 10 science subject. Today we are going to start a new chapter of science, chapter number 11. The name of the chapter is Human Eye and a Colorful World. So let's start the chapter 11. Today we are going to discuss about lecture 1 for class 10th chapter 11. Now, we already know that human eye is a very important organ of our body. In the screen, you saw that a complete figure of our human eye. Human eye is not a simple structure. It is a combination of different parts. It works as a synchronous of different parts so that we can see the colorful world around us. This chapter is divided in two major parts. First part is a human eye and second part is colorful world around us. So let's start discussion about a human eye. The human eye is one of the most valuable and sensitive sense organs in the human body. It enables us to see the wonderful world and color around us. First of all, we discuss about the structure of human eye. In figure, you saw that the important component of human eye, it is first one is cornea, iris, pupil, aqueous humor, crystalline lens, ciliary muscle, retina, optic nerve and vitreous humor. These are the important part of our human eye. So let us discuss first the different function of this human eye. These are the different you can say that a structure of eye, you can say that it is a component of our human eye through which the eye can completely function. So one by one we discuss the different component, different part of our human eye. First of all, we discuss a cornea. This one is a cornea of our human eye. Now, what is the function of cornea in our eye? Cornea is a transparent spherical membrane covering the front of the eye, and light is enter the eye through this membrane. तो cornea एक spherical very much sensitive organ है. वो हमारी आई के फ्रंट साइड पे होता है. जो भी लाइट एंटर होती है हमारी आई में वो कॉर्निया थ्रू ही एंटर होती है. सेकंड कंपोनेंट, सेकंड पार्ट ऑफ आवर ह्यूमन आई इज crystalline lens. It is a crystalline lens. What is the function of this crystalline lens in our human eye? The eye lens, crystalline lens को ही हम क्या बोलेंगे? It is a simply a eye lens. The eye lens is a convex lens. Which type of lens is used in our human eye? It is a convex type lens. The crystalline lens, it is also called as an eye lens. It is a convex lens made of a transparent, soft and flexible material like a jelly made of a protein. तो ये क्रिस्टलाइन लेंस क्या है? क्रिस्टलाइन लेंस आई लेंस है. वो कौन सी तरह का लेंस है? वो कॉन्वेक्स लेंस है. वो कैसा है? इट इज़ मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट होता है, सॉफ्ट होता है और फ्लेक्सिबल मटेरियल लाइक जेली जैसा वो होता है. और वो किससे बनता है? वो प्रोटीन से बनता है. थर्ड कंपोनेंट, थर्ड पार्ट of our human eye is
iris. It is a iris. Now what is iris? It is a dark muscular diaphragm between cornea and the lens. तो आइरिस क्या है? जो हमारी आई में जो डार्क मस्कुलर डायफ्राग्राम है, किसके बीच में होता है वो आइरिस? इट इज बिटवीन द कॉर्निया एंड द क्रिस्टलाइन लेंस. सो आइरिस इज सिंपली अ डार्क मस्कुलर डायफ्राग्राम बिटवीन cornea and the lens. What is the function of this iris? It will control the size of the pupil. What is pupil? We discuss next. आइरिस का काम क्या है? वो प्यूपिल की जो साइज है उसको कंट्रोल करता है. प्यूपिल की जो साइज बढ़ने में घटने में जो कंट्रोल चाहिए वो कौन प्रोवाइड करेगा? वो आइरिस प्रोवाइड करेगा. सो इट इज़ कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल. इट इज़ द कलर ऑफ आइरिस दैट वी कॉल एज द कलर ऑफ द आई. तो यहाँ पे आइरिस का जो भी कलर होता है हमारा, उसको हम आई का कलर बोलते हैं. सपोज कोई ह्यूमन की जो आइज़ है वो ब्लू है, वो आइरिस का कलर अगर ब्लूएस होगा तो हम बोलते हैं कि ये ह्यूमन की आइज़ ब्लू कलर की है. अगर कोई ह्यूमन की आइज़ डार्क ब्लैक होती है तो हम उसको बोलते हैं कि इसकी जो आइज़ है ओके वो डार्क ब्लैक है या ब्राउन है या ब्लूइश है. वो किसका कलर की वजह से होता है? जो आइरिस का कलर होता है वही हमको आई का कलर दिखता है. तो हमने अभी तक 3 स्ट्रक्चर ऑफ आई पढ़े. फर्स्ट वन इज कॉर्निया. तो कॉर्निया क्या है? इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मेम्ब्रेन ऑफ आवर आई. इट इज़ अ फ्रंट पोर्शन ऑफ आवर आई and light is enters the eye through this membrane. It is called as a cornea. सेकंड हमने डिस्कशन किया क्रिस्टलाइन लेंस. तो क्रिस्टलाइन लेंस एक जेली जैसा सॉफ्ट ट्रांसपेरेंट ब्लैक मटेरियल का है. वो प्रोटीन से बना हुआ है. क्रिस्टलाइन लेंस जो होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है और क्रिस्टलाइन लेंस को ही हम आई लेंस बोलते हैं. थर्ड हमने डिस्कशन किया आइरिस के बारे में. तो आइरिस क्या है? डार्क मस्कुलर डायफ्राग्राम है. वो कॉर्निया और लेंस के बीच में होता है. आइरिस का काम है प्यूपिल की जो साइज़ है ओके वो कंट्रोल करता है. और जो आइरिस का कलर होता है वो हमको आई का कलर दिखता है. फोर्थ वन इज प्यूपिल. नाउ व्हाट इज प्यूपिल? इट इज़ अ स्मॉल होल बिटवीन द आइरिस थ्रू विच लाइट एंटर्स द आई. तो प्यूपिल क्या है? प्यूपिल आइरिस के अंदर एक स्मॉल होल होता है कि उसमें से लाइट आई के अंदर एंटर होती है. इट इज़ अ स्मॉल होल बिटवीन द आइरिस थ्रू विच लाइट एंटर्स द आई. इन डीम लाइट it opens up completely due to the expansion of iris muscle. तो जब भी डीम लाइट होती है ओके तब ये प्यूपिल है वो एक्सपांड होता है ओके. और जब डार्क लाइट होती है तब ये प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट होता है. तो एक्सपांशन की वजह से जो प्यूपिल की जो साइज़ है ओके वो बढ़ जाती है और कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो प्यूपिल की आई है वो साइज़ है वो घट जाती है ओके. सो इन डीम लाइट इट ओपन्स अप कम्प्लीटली. अभी प्यूपिल को कौन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपांड करेगा? आइरिस मसल ओके. आइरिस मसल का काम क्या है? प्यूपिल के साइज़ को कंट्रोल करना. सो इन डीम लाइट इट ओपन्स अप कम्प्लीटली ड्यू टू द एक्सपांशन ऑफ आइरिस मसल. बट इन द ब्राइट लाइट it becomes a very small due to the contraction of iris muscle. इसके लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ. अगर आपकी आइज़ पे कोई टॉर्च ओके
टॉर्च की लाइट आपके आइज़ पे वो रखे तो हमारी आइज़ क्या हो जाती है, स्मॉल हो जाती है। ओके, क्यों? क्योंकि जब भी ब्राइट लाइट हमारी आइज़ पे आती है तब आइरिस मसल प्यूपिल की साइज़ को कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, उसकी वजह से हमारे जो प्यूपिल की साइज़ होती है वो कॉन्ट्रैक्शन के वजह से स्मॉल हो जाती है। ओके, और जब भी डिम लाइट होती है तब हमारी जो आइरिस मसल है वो प्यूपिल की साइज़ को एक्सपांड करती है और उसकी वजह से प्यूपिल की जो साइज़ है वो एक्सपांशन के कारण कंप्लीटली ओपन होता है। नेक्स्ट component is ciliary muscle. Next is the ciliary muscle. यहाँ पे फिगर में आप देखो सिलियरी मसल टॉप राइट साइड पे सिलियरी मसल नाम लिखा हुआ है। ना व्हाट इज दिस सिलियरी मसल? सिलियरी मसल का काम क्या है? दे होल्ड द लेंस इन अ पोजीशन and help in modifying the curvature of the lens. सिलियरी मसल का काम क्या है कि वो लेंस को पकड़ के रखते हैं सेंटर पोजीशन में और जो लेंस का सरफेस कर्वेचर है उसको वो मॉडिफाई करने में हेल्प करते हैं। सिलियरी मसल का काम क्या है? लेंस को वो जकड़ के रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, पोजीशन उसकी सेट करते हैं और जो कर्वेचर ऑफ लेंस है, ओके, हमारी आइज़ का जो लेंस है उसको सरफेस कर्वेचर को मॉडिफाई करने में सिलियरी मसल हेल्प करता है। नेक्स्ट पार्ट है रेटिना। नेक्स्ट इज अ रेटिना। अभी रेटिना क्या है? इट इज़ द लाइट सेंसिटिव सरफेस ऑफ द आई ऑन विच द इमेज इज फॉर्म। चलो अभी यहाँ से सिंपल आई लाइट आइज़ में एंटर होती है, उसका रिफ्रैक्शन होके जहाँ पे लाइट इमेज प्रोड्यूस करती है वो सेंसिटिव सरफेस रेटिना है। वो सेंसिटिव सरफेस क्या है? रेटिना है। सो रेटिना को अगर मुझे डिस्क्राइब करना है तो मैं क्या कह सकता हूँ? इट इज़ अ लाइट सेंसिटिव सरफेस ऑफ द आई ऑन विच इमेज इज फॉर्म। रेटिना के ऊपर इमेज फॉर्मेशन होता है। इट कंटेन्स अ लाइट सेंसिटिव सेल रोड एंड कॉन्स। तो रेटिना में क्या होता है? रेटिना कंटेन्स अ लाइट सेंसिटिव सेल रोड एंड कॉन्स। अभी रोड सेल क्या है? रोड सेल है, रोड सेल रिस्पॉन्स टू द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एंड कॉन सेल इज रिस्पॉन्स टू द इल्यूमिनेशन। तो रोड सेल का काम क्या है? उसमें रेटिना के अंदर रोड सेल होते हैं और कॉन्स होते हैं। तो जो रोड सेल है उसका काम क्या है? रोड सेल विल रिस्पॉन्स टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जो लाइट की इंटेंसिटी है उसके कारण वो रिस्पॉन्स करता है। और कॉन सेल का काम क्या है? जो इल्यूमिनेशन मतलब क्या? रोशनी। ओके, कॉन सेल will respond to the illumination. For example, primary color number of rod cell is greater than the number of cone cell. तो यहाँ पे जो प्राइमरी कलर नंबर है, ओके, वो रोड सेल में ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू द कॉन सेल। नाउ दिस सेल generate a signal which are transmitted to the brain through the optic nerves. अभी जो भी इमेज रेटिना पर, रेटिना के सेंसिटिव सरफेस पे गिरती है वो हमें दिखती कब है? जब वो इमेज का मैसेज आई से ट्रांसफ़र होता है ब्रेन तक, तब ही वो इमेज हमको दिखाई देती है। अगर वो कोई ऑब्जेक्ट की इमेज हमारी रेटिना पे जनरेट होती है लेकिन वो मैसेज
ब्रेन तक नहीं पहुंचता तो वो इमेज क्या है वो हमको पता नहीं चलेगा। सो रेटिना का काम क्या है, दिस सेल, रेटिना के अंदर रोड सेल है और कौन सेल है, उसका काम क्या है, दिस सेल इज जनरेट अ सिग्नल विच आर ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन। ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन किसके मीडियम से होते हैं, ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन थ्रू अ दिस ऑप्टिक नर्व। तो ऑप्टिक नर्व्स के मीडियम से जो भी रेटिना पे इमेज जनरेट होती है वो ब्रेन तक पहुंचते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व का काम क्या है, इट अभी हमने देखा ऑप्टिक नर्व क्या है, इट ट्रांसमिट द विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रेटिना टू द ब्रेन। तो जो भी रेटिना पे विजुअल इंफॉर्मेशन मतलब कि जो इमेज जनरेट होती है वो इमेज का विजुअल इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाने का काम ऑप्टिक नर्व्स करती हैं। नेक्स्ट है स्केलेरा। नाउ what is the function and what is the sclera is, sclera is an opaque fibrous protective outer layer of an eye containing collagen and elastic fiber. It is also known as white of the eye. तो स्केलेरा क्या है, हमारी जो आई हम नेकेड आई से देखते हैं तो हमको उसमें वाइट पोर्शन और ब्लैक पोर्शन दिखता है। ब्लैक कलर का जो पोर्शन है वो सर्कुलर होता है, उसके बिना का जो वाइट कलर का पोर्शन है हमको दिखता है वो है स्केलेरा। तो स्केलेरा क्या है, स्केलेरा इज एन ओपेक फाइबरियस प्रोटेक्टिव आउटर लेयर ऑफ एन आई containing collagen and elastic fiber. It is also known as white of the eye. Next is a blind spot. Now, what is this blind spot? It is the point at which optic nerve leaves the eye. तो जहाँ जिस पॉइंट से ऑप्टिक नर्व पास होती है वो पॉइंट को ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। इट इज़ द पॉइंट एट विच ऑप्टिक नर्व लीव्स द आई। आइस को जो पॉइंट पे ऑप्टिक नर्व लीव करते हैं वो पॉइंट को ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। इट कंटेन्स नो रोड एंड द कॉन, सो एन इमेज फॉर्म एट दिस पॉइंट इज नॉट सेंड टू द ब्रेन। तो जब भी ब्लाइंड स्पॉट पे कोई इमेज जनरेट होती है तो वो इमेज हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंचती, क्योंकि वहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट पे रोड और कॉन्स दोनों नहीं होते और वहाँ पे गिरने वाली इमेज का इंफॉर्मेशन ब्रेन तक नहीं पहुंचता। वो पॉइंट को ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। नेक्स्ट इज aqueous humor. This one, aqueous humor. Aqueous humor क्या है? Aqueous humor is between the cornea and eye lens. Aqueous humor कहाँ पे होता है? कॉर्निया और आई लेंस के बीच में aqueous humor होता है। We have a space filled with a transparent liquid, the aqueous humor, which help the refracted light टू बी फोकस ऑन द रेटिना। तो हमारे आइस में जो एक्वस होता है, ओके, विच इज़ फिल्ड विथ अ सिंपल, इट इज़ फिल्ड विथ अ ट्रांसपेरेंट लिक्विड। तो हमारी आइस का जो ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है उसको एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। उसका काम क्या है? इट विल हेल्प टू द रिफ्रैक्टेड लाइट टू बी फोकस ऑन द रेटिना। तो जो भी लाइट हमारी आई से रिफ्रैक्ट होती है उसको रेटिना पे फोकस करने का काम एक्वस ह्यूमर का होता है। इट ऑल्सो मेंटेन्स इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। तो उसका काम आइस का जो प्रेशर जितना चाहे बनना चाहिए उसको मेंटेन करने का काम भी
एक्वस ह्यूमर का होता है। एंड लास्ट पार्ट ऑफ आवर ह्यूमन आई इज विट्रस ह्यूमर। हमारे ह्यूमन आई में दो तरह के ह्यूमर लिक्विड होते हैं। फर्स्ट वन इज एक्वस एंड सेकंड वन इज विट्रस ह्यूमर। अभी विट्रस ह्यूमर क्या है? द स्पेस बिटवीन आईलेंस एंड रेटिना इज फिल्ड विथ अनदर लिक्विड इज कॉल्ड एज अ विट्रस ह्यूमर। तो यहाँ पे उसका फिगर है, फिगर में आप देखो ये विट्रस ह्यूमर का पोर्शन है, वो द स्पेस बिटवीन द आई लेंस एंड द रेटिना। यहाँ पे ये आई लेंस है, ये हमारी रेटिना है, ये इन बिटवीन का जो स्पेस है, ओके, द स्पेस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना इज फिल्ड विथ अनदर लिक्विड इज नोन एज विट्रस ह्यूमर। नाउ द सम important point regarding our human eye are: first, iris regulates the amount of light entering the eye by adjusting the size of pupil। तो आइरिस का काम क्या है? जो अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आई में एंटर होता है तो उसके वजह से जो प्यूपिल की साइज कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांसन, प्यूपिल की साइज घटाना या बढ़ाना, एक्सपांसन और कॉन्ट्रैक्शन का काम आइरिस करता है। सेकंड, प्यूपिल अपीयर्स अ ब्लैक बिकॉज नो लाइट इज रिफ्रैक्टेड बाय इट। तो प्यूपिल का कलर हमको क्यों ब्लैक दिखता है? प्यूपिल इज अपीयर्स ब्लैक बिकॉज उसमें से एंटर होने वाली लाइट का रिफ्रैक्शन नहीं होता है। ओके, दैट्स वाई द प्यूपिल अपीयर्स ब्लैक बिकॉज ऑफ नो लाइट इज रिफ्रैक्टेड बाय इट। थर्ड, द आईबॉल इज नियरली स्फेरिकल इन शेप विथ डायमीटर ऑफ 2.3 सेंटीमीटर। तो हमारी जो आईबॉल है, आईबॉल का जो शेप है वो स्फेरिकल शेप होता है नियर अबाउट, और उसकी जो साइज़ है, उसका जो डायमीटर है वो 2.3 सेंटीमीटर जितना होता है। सो दिस आर इम्पोर्टेंट पॉइंट, कीप इन माइंड। नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज। An image is formed on the retina by successive refraction at the cornea, the aqueous humor, lens and the vitreous humor। तो जो रेटिना पे इमेज जनरेट होती है वो किसके कारण होती है? सक्सेसिव रिफ्रैक्शन होता है। कहाँ कहाँ पे? कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर, लेंस एंड विट्रस ह्यूमर में जो सक्सेसिव रिफ्रैक्शन होता है और उसके वजह से रेटिना पे इमेज जनरेट होती है। इट इज़ अ रियल, डिमिनिश्ड एंड इन्वर्टेड इन नेचर। तो हमारी ह्यूमन आई में जो भी इमेज जनरेट होती है वो इमेज कैसी होती है? दिस इमेज आर रियल, डिमिनिश्ड एंड इन्वर्टेड इन आवर नेचर। याद रखना, ह्यूमन आई में जनरेट होने वाली जो इमेज होती है वो रियल होती है, डिमिनिश्ड होती है और इन्वर्टेड होती है। द लाइट सेंसिटिव सेल ऑफ रेटिना गेट एक्टिवेटेड अपॉन इल्यूमिनेशन एंड जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो हमारे जो लाइट सेंसिटिव सेल रेटिना के अंदर लाइट सेंसिटिव सेल होते हैं वो एक्टिवेटेड कब होते हैं? जब भी इल्यूमिनेशन उस पर गिरता है। इल्यूमिनेशन मतलब रोशनी उस पर जब भी गिरती है तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं। सो लाइट सेंसिटिव सेल ऑफ रेटिना गेट एक्टिवेटेड अपॉन इल्यूमिनेशन एंड जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल। दिस सिग्नल आर देन सेंड टू द ब्रेन वाया ऑप्टिक नर्व। तो जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होते हैं वो ऑप्टिक नर्व के मीडियम से हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं। द ब्रेन इंटरप्रेट दिस सिग्नल एंड फाइनली प्रोसेस द इंफॉर्मेशन सो दैट वी परसीव एन ऑब्जेक्ट एज दे आर। तो जो भी सिग्नल ब्रेन तक पहुंचते हैं, ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है, समझता है, और दिस प्रोसेस
का इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट जब ब्रेन करेगा तभी हमको जो ऑब्जेक्ट है वो हमको दिखेगा। नेक्स्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज इज कलर ऑफ ऑब्जेक्ट। नाउ हमारे आसपास कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसका हमको कलर दिखते हैं। सपोज़ वो ग्रीन कलर का है, सपोज़ वो ब्लैक कलर का है, ब्लू कलर का है, जो भी कलर का ऑब्जेक्ट है ओके, उसका कलर को हम ह्यूमन आई के कारण देख सकते हैं। तो वो कैसे देख सकते हैं? द रोड शेप सेल ऑफ रेटिना रिस्पॉन्स टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो कौन सेल और रोड सेल हम रेटिना में होते हैं, उसमें जो रोड शेप सेल होते हैं, तो रोड शेप सेल का काम क्या है? इट विल रिस्पॉन्ड टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट मतलब क्या? ज़्यादा रोशनी कम रोशनी, उसको बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ओके, द रोड शेप सेल ऑफ रेटिना रिस्पॉन्ड टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। फॉर एग्जाम्पल डी ऑफ ब्राइटनेस और डार्कनेस बट डू नॉट रिस्पॉन्ड टू द कलर। तो जो रोड शेप सेल होते हैं वो ब्राइटनेस और डार्कनेस को रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन जो कलर है उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। तो रोड सेल का इट विल ओनली रिस्पॉन्ड टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और दूसरे जो कॉन सेल होते हैं, कॉन सेल आर सेंसिटिव टू द डिफरेंट एक्सटेंट ऑफ आवर प्राइमरी कलर सच एज रेड, ब्लू एंड ग्रीन। तो हमारे जो कलर सिस्टम है उसमें प्राइमरी कलर एंड सेकेंडरी कलर आते हैं। प्राइमरी कलर में कौन से कलर होते हैं? रेड कलर, ब्लू कलर और ग्रीन कलर जो होते हैं वो उसको प्राइमरी कलर बोलते हैं। तो कौन सेल डिफरेंट प्राइमरी कलर को सेंसिटिव करता है। वो प्राइमरी कलर कौन से है? रेड, ब्लू एंड ग्रीन। तो हमारी कलर ऑफ ऑब्जेक्ट कब जो कौन सेल होते हैं वो प्राइमरी कलर को से सेंसिटिव है और वो रेड, ब्लू और ग्रीन कलर को सेंस करते हैं। ओके, इसके वजह से हमको जो ऑब्जेक्ट का कलर होता है वो हम महसूस कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। हियर टू इम्पोर्टेंट थिंग, आई साइट ऑफ बीज एंड आई साइट ऑफ चिक्स। नाउ यू नो दैट बीज, आई साइट ऑफ बीज मतलब क्या? द retinal cone of bees are sensitive to the ultraviolet light which we cannot see with our eyes. जो ultraviolet light होती है UV light, we know the simple form, short form of ultraviolet light UV light। जो UV light है वो ह्यूमन आई सेंस नहीं कर सकती। ओके, उसको हम बोलेंगे आई साइट ऑफ बीज। सेकंड है आई साइट ऑफ चिक्स। चिक्स वेक अप अर्लियर इन द मॉर्निंग देन ह्यूमन बिकॉज द रेटिना हैव मोस्टली कॉन्स विच आर वेरी सेंसिटिव टू द ब्राइट लाइट एंड रोड्स आर वेरी फ्यू। तो जो चिक्स होते हैं उसमें जो कॉन, रेटिना में कॉन की जो नंबर होते हैं वो ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू द रोड सेल। तो जो कॉन सेल है वो लाइट को अच्छी तरह से सेंस कर सकते हैं, इसलिए जो चिक्स होते हैं वो ह्यूमन से पहले अर्ली मॉर्निंग में जाग जाते हैं। ओके, तो दिस आर द टू टर्म्स रिगार्डिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, आई साइट ऑफ बीज और आई साइट ऑफ चिक्स। आई साइट ऑफ बीज में क्या देखा हमने? ह्यूमन आइज कैन नॉट सेंसिटिव टू द यूवी लाइट्स एंड जो चिक्स होते हैं उसमें जो कॉन सेल होते हैं वो रोड सेल से ज़्यादा होते हैं। ओके, दैट्स वाई दे सेंसिटिव टू द लाइट वेरी फास्ट देन द ह्यूमन। दीज आर कॉल्ड एज द आई साइट ऑफ चिक्स। नेक्स्ट पॉइंट इज टर्म्स रिलेटेड टू द ह्यूमन आई। अभी हमारे जो ह्यूमन आई के रिगार्डिंग जो भी टर्म यूज़ होती है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट वन इज़ अ एकोमोडेशन।
accommodation. Now, what is the meaning of accommodation? It is the ability or the property of eye lens to focus both near or distant object by adjusting its focal length. तो हमने ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर पढ़ा है, उसमें जो प्यूपिल है उसकी साइज़ इंक्रीज और डिक्रीज होती है, मतलब कि वो फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है. फोकल लेंथ मतलब क्या? इन प्रीवियस चैप्टर यू स्टडी अबाउट लेंस एंड मिरर इन विच यू स्टडी अ फोकल लेंथ. फोकल लेंथ मतलब कि जो इमेज फॉर्मेशन है उसको घटाना बढ़ाना, उसको एडजस्ट करना फोकल लेंथ से पॉसिबल है. तो एकोमोडेशन क्या है? जो ह्यूमन आई में जो लेंस है, ओके, उसको नज़दीक का और दूर की देखने की एबिलिटी है, उसको ह्यूमन आई के रिगार्डिंग एकोमोडेशन बोलेंगे. हाउएवर द फोकल लेंथ कैन नॉट बी डिक्रीज और इंक्रीज बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट. अभी यहाँ पे जो फोकल लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज होता है वो सर्टेन लिमिट में होता है, उससे ज़्यादा वो हो सकता नहीं है. ड्यू टू दिस a healthy person cannot view clearly if the object is held too closely, less than 25 centimeter or too far from the eye. तो ये जो फोकल लेंथ है वो एक सर्टेन लिमिट में इंक्रीज और डिक्रीज होती है. दैट्स वाई कोई हेल्दी पर्सन भी आई से नज़दीक 25 सेंटीमीटर के नज़दीक की कोई चीज़ क्लियरली नहीं देख सकता और बहुत दूर रखी हुई चीज़ भी हम नहीं देख सकते. तो इसको बोलेंगे एकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई. द सिलियरी मसल हेल्प इन चेंजिंग द कर्वेचर ऑफ आई लेंस. तो सिलियरी मसल में हमने देखा सिलियरी मसल का काम क्या है. वो जो आई बॉल है, आई लेंस है, उसकी जो कर्वेचर उसको चेंज करता है. When muscles are relaxed, the lens become a thin and its focal length increase. चलो यहाँ पे क्या लिखा है? तो when muscle are relaxed, lens कैसा होता है? thin and its focal length is increase. तो जब भी मसल्स मतलब कि नॉर्मल आई से हम देखते हैं, ओके, जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा भी नहीं होगी बहुत कम भी नहीं होगी, उस टाइम हमारे जो आई मसल्स है वो रिलैक्स होते हैं. उस टाइम पे जो लेंस होता है हमारा आई लेंस वो थिन होता है और उस टाइम पे फोकल लेंथ इंक्रीज रहती है. दिस अनेबल अस टू सी अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली. तब हम सर्टेन डिस्टेंस पे रखी हुई ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं. बट while viewing nearby the object, the ciliary muscles contract. जब बहुत नज़दीक आई से बहुत नज़दीक रखी हुई ऑब्जेक्ट को हमको देखना होता है तब सिलियरी मसल्स को क्या करना पड़ता है? कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ता है. तब लेंथ बिकम थिकर एंड फोकल लेंथ इज डिक्रीज. तो जब भी हमारी आई के बहुत नज़दीक कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं हम और उसको हमको देखना होता है तो उस टाइम पे सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है. उस टाइम जो लेंस होता है वो थिकर होता है और जो फोकल लेंथ होती है वो डिक्रीज होती है. यहाँ पे हमने लेंस, फोकल लेंथ और सिलियरी मसल्स के रिगार्डिंग दो बात डिस्कशन की है. बहुत इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. याद रखना है कि जब भी सिलियरी मसल्स रिलैक्स होते हैं तब लेंस होता है वो थिन होता है और फोकल लेंथ इंक्रीज रहती है. लेकिन जब भी कोई बहुत नज़दीक रखा हुआ ऑब्जेक्ट को हमको देखना होता है उस टाइम पे जो सिलियरी मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. उस टाइम जो हमारा आई लेंस होता है वो थिकर हो जाता है और उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो डिक्रीज हो जाती है.
नेक्स्ट इज अ पावर ऑफ एकोमोडेशन। पहले हमने देखा एकोमोडेशन, अभी नेक्स्ट है पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन किसे कहेंगे? इट इज़ द मैक्सिमम वेरिएशन इन पावर ऑफ आई लेंस फॉर फोकसिंग नियर बाय और फार एंड ऑब्जेक्ट। तो जो हमारे आई लेंस की मैक्सिमम आई लेंस की फोकस करने की जो काबिलियत है, ओके, तो उसको मैक्सिमम वेरिएशन ला सके, सबसे दूर का देखने के लिए, सबके नज़दीक का देखने के लिए, जो फोकल लेंथ चेंज करने की आई की जो कैपेबिलिटी होती है उसको हम पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलेंगे। सो दिस इज क्लियरली एट अ रेटिना फॉर यंग एंड एडल्ट। For with a normal vision, power of accommodation is about 4D। तो जो भी यंग और एडल्ट होते हैं उसकी जो नॉर्मल विज़न का पावर ऑफ एकोमोडेशन 4D जितना होता है। एंड आई लॉसेस इट्स पावर ऑफ एकोमोडेशन एट ओल्ड एज। तो जब भी इंसान ओल्ड एज में पहुंचता है तब उसका जो पावर ऑफ एकोमोडेशन, जो देखने की काबिलियत, वो रिड्यूस हो जाती है। तो हम उसको बोलेंगे उस पावर ऑफ एकोमोडेशन इज डिक्रीज एट ओल्ड एज। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज फार पॉइंट ऑफ द आई। फार पॉइंट ऑफ द आई, फ्रॉम इट्स नेम वी कैन से दैट इट इज द फारडेस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी क्लियरली। सबसे दूर तक देखने की आई की जो कैपेबिलिटी होती है उसको फार पॉइंट ऑफ द आई, सबसे दूर कितने डिस्टेंस तक आई देख सकती है उसको हम बोलेंगे फार पॉइंट ऑफ द आई। इट इज़ इनफाइनाइट फॉर अ नॉर्मल आई। तो नॉर्मल आई इनफाइनाइट बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक देख सकती है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज नियर पॉइंट ऑफ आई। फार पॉइंट से अपोजिट नियर पॉइंट ऑफ आई मीन्स क्या? द मिनिमम डिस्टेंस एट विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट एनी स्ट्रेन इज कॉल्ड एज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो हमारे ह्यूमन आई के नज़दीक कितनी मिनिमम डिस्टेंस से विदाउट कोई स्ट्रेन आई देख सकती है उसको बोलेंगे नियर पॉइंट ऑफ आवर आई। फॉर अ नॉर्मल आई, फॉर एन एडल्ट इट इज़ 25 सेंटीमीटर। तो हमारी आई से नज़दीक के नज़दीक अगर 25 सेंटीमीटर जितना डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो हम उसको क्लियरली देख सकते हैं। उसके आगे डिस्टेंस घटाएंगे 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तो हमारी ह्यूमन आई cannot see clearly. It is also called as a near point of the eye. नियर, उसको ही हम नियर पॉइंट ऑफ द आई बोलेंगे। अभी ये सब जो भी टर्मिनोलॉजी हम डिस्कस कर रहे हैं उसका पीछे चैप्टर में यूज़ होगा, वहाँ पे डायरेक्ट होगा नियर पॉइंट ऑफ द आई। ओके, तो उसका मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए हम पहले ही जो भी टर्म यूज़ हो रहे हैं उसके रिगार्डिंग डिस्कशन कर रहे हैं। नेक्स्ट टर्म इज़ persistence of vision, the time for which impression or sensation of an object continue in the eye is called as a persistent of vision। तो हमारी आई कोई भी इम्प्रेशन और सेंसेशन को कितने टाइम तक सेंस कर सकती है, याद रख सकती है, उसको हम बोलेंगे persistence of vision। It is about 1/16 of a second, which means that a minimum time for which we should view an object। तो persistence of vision कितना है? 1/16 of a second। वो ह्यूमन आई के लिए persistent of vision है। So that it is clear that the image is formed on a retina is 1/16 of a second। तो कोई भी इमेज को हमारी रेटिना पे जनरेट होने के लिए 1/16 1 सेकंड का 16 टाइम कोई भी इमेज को रेटिना पे जनरेट होने में लगता है।
Not one thing here. When the eye is looking at nearby object, eye lens become more convex. तो जब भी कोई नियर बाय ऑब्जेक्ट को ह्यूमन आई देखती है तब जो हमारा लेंस होता है वो मोर कॉन्वेक्स हो जाता है. इम्पोर्टेंट एमसीक्यू. मोर कॉन्वेक्स मतलब उसकी फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है. जितना कॉन्वेक्स ज़्यादा होगा उतनी उसकी जो फोकल लेंथ है वो डिक्रीज हो जाती है. नाउ हियर one question is arise in your mind that why do we have a two eyes for a vision and not just one. तो ह्यूमन या कोई भी ह्यूमन या कोई एनिमल को सिंपल कोई भी ऑब्जेक्ट देखने के लिए दो आइज होती है, एक से नहीं हो पाता. क्यों? A human being has a horizontal field of view of about 150 degree with one eye of about 180 degree. तो हमारी जो ह्यूमन आई है उसको हॉरिजॉन्टल फील्ड में वो 180 डिग्री में से 150 डिग्री तक एक ह्यूमन आई देख सकती है. ओके. A human being has a horizontal field of view of about 150 degree with one eye and about 180 degree with two eye. तो एक ही ह्यूमन आई होगी तो वो 150 डिग्री जितना ही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को देख सकती है, जबकि जो दो आई होती है वो 180 डिग्री जितना डिस्टेंस देख सकती है. सो टू आई गिव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू. तो दोनों आई से जो वाइडर फील्ड व्यू है उसको हम देख सकते हैं. दैट्स वाई द एबिलिटी टू डिटेक्ट अ फेंट ऑब्जेक्ट इज एनहांस विथ एंड टू आई. आवर आई आर सेपरेटेड बाय अ फ्यू सेंटीमीटर एंड ईच आई सीज अ स्लाइटली डिफरेंट इमेज. तो हमारे जो दोनों आइज है वो फ्यू सेंटीमीटर से एक दोनों सेपरेटेड होते हैं. ओके. Our brain combines the two images into one, tells us to how close or far away things are. तो हम जो दो आइज से देखते हैं उसके जो सिग्नल ब्रेन तक पहुंचते हैं और हमारी ब्रेन हमको बताता है कि ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमसे कितना दूर है और कितना नज़दीक है. कीपिंग बोथ द आइज ओपन प्रोवाइड द थर्ड डायमेंशन ऑफ डेप्थ. तो उसके कारण ये जानने के लिए 180 डिग्री दोनों आइज से वो हम देख सकते हैं और जो इमेज जनरेट होती है वो ब्रेन तक पहुंचती है और ब्रेन हमको कहता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस हमसे कितना नज़दीक कितना दूर है वो समझने के लिए वी रिक्वायर टू आई फॉर अ विज़न, नॉट जस्ट वन. Now next very most important topic of human eye is defect of vision and their correction. तो ह्यूमन आइज में डिफरेंट तरीके की डिफेक्ट प्रोड्यूस होती है ड्यू टू सर्टेन रीज़न. उसके बारे में हम अभी डिस्कशन करेंगे और वो करेक्शन कैसे होते हैं वो भी हम देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अ डिफेक्ट ऑफ विज़न. The defect due to which a person cannot see the object distinctly and comfortably are called as defect of vision. तो defect of vision क्या है? Due to some certain reason human eye or a person cannot see the object distinctly and comfortably. It is called as a defect of vision. The main defect of vision are, तो ह्यूमन आई में तीन तरह की डिफेक्ट होती है. फर्स्ट वन इज मायोपिया और यू कैन से दैट नियर. मायोपिया का ही नाम है नियर और शॉर्ट साइटनेस. फर्स्ट डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई इज कॉल्ड एज मायोपिया. मायोपिया ही का ही दूसरा नाम क्या है? नियर और शॉर्ट साइटनेस. सेकंड डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई इज हाइपरमेट्रोपिया
or it is called as a far or long sightedness. And third defect of human eye is called as a प्रीबायोपिया. तो ये तीन तरह के डिफेक्ट ह्यूमन आई में प्रोड्यूस होती हैं. मायोपिया का ही दूसरा नाम है नियर और शॉर्ट साइटनेस. सेकंड वन इज हाइपरमेट्रोपिया, इट इज कॉल्ड एज अ फार और लॉन्ग साइटनेस. एंड थर्ड वन इज प्रीबायोपिया. वन बाय वन we discuss each defect. So start with first one is myopia or near or short sightedness. Now first of all, what is myopia? क्या होता है myopia defect में? In this defect, person can see nearby object distinctly but cannot see a distant object clearly. तो मायोपिया में जो नज़दीक रखी हुई ऑब्जेक्ट का इमेज पर्सन क्लियरली, नज़दीक रखी हुई ऑब्जेक्ट को पर्सन क्लियरली देख सकता है, लेकिन कोई दूर रखी हुई ऑब्जेक्ट वो क्लियरली देख नहीं सकता. इन दिस केस इमेज फॉर्म्स बिफोर रेटिना. वो ऐसा क्यों होता है कि नज़दीक की जो चीज़ होती है वो देख सकते हैं लेकिन दूर की क्यों नहीं देख सकती? बिकॉज जो इमेज रेटिना पे जनरेट होती है वो रेटिना पे जनरेट होने के बजाय रेटिना के आगे ही वो जनरेट हो जाती है. उसके कारण ये मायोपिया डिसीज़ हो जाती है. ओके, यहाँ पे फिगर में समझो उसको मायोपिया कैसे होता है. सपोज़ यहाँ पे ये नॉर्मल विज़न है. नॉर्मल विज़न क्या है? ये रेटिना है आपका. यहाँ पे जो इमेज जनरेट, नॉर्मल पर्सन में जो इमेज जनरेट होती है वो रेटिना पे जनरेट होती है. मायोपिया में क्या होता है कि जो भी इमेज जनरेट होती है वो मायोपिया, वो रेटिना से पहले कुछ डिस्टेंस पहले ही वो इमेज जनरेट हो जाती है. उसके कारण जो दूर रखी हुई चीज़ को ह्यूमन आई कंप्लीटली परफेक्टली देख नहीं सकती. अभी जो मायोपिया है उसका कोजेस क्या है? व्हाट आर द डिफरेंट कोज फॉर मायोपिया? फर्स्ट, अ पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज़ अ फार पॉइंट नियरर देन इन्फिनिटी. दिस defect arise due to the decrease in focal length of the lens. तो ये जो डिजीज है वो किसके कारण जनरेट होती है? ड्यू डिक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ लेंस. ओके, जो लेंस की जो फोकल लेंथ डिक्रीज होनी चाहिए, ओके, वो नहीं हो पाती, उसके कारण मायोपिया होता है. नाउ अभी ये डिक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ लेंस किसके कारण होता है? इट इज़ ड्यू टू द एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस. इट इज़ ड्यू टू द एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस और इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल. तो एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस और इलोंगेशन ऑफ आई बॉल के कारण मायोपिया होता है. एज अ रिजल्ट इमेज इज फॉर्म बिफोर द रेटिना. तो एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस और इलोंगेशन ऑफ आई बॉल के कारण जो इमेज फॉर्मेशन रेटिना पे होना चाहिए उसके बजाय उसके पहले हो जाती है, और जो दूर रखी हुई चीज़ ह्यूमन आई कैन नॉट सी इट क्लियरली. नाउ हियर वी डिस्कस अ कॉजेस ऑफ मायोपिया. नाउ हाउ कैन वी रिसॉल्व दिस प्रॉब्लम? तो मायोपिया है उसको हम दूर कैसे कर सकते हैं? दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग, मायोपिया इज करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्केव लेंस. इम्पोर्टेंट थिंग, मायोपिया है उसको कॉन्केव लेंस के मीडियम से उसको हम करेक्ट कर सकते हैं. अ कॉन्केव लेंस ऑफ सूटेबल पावर विल ब्रिंग बैक ए इमेज ऑफ रेटिना. तो अगर हम कॉन्केव लेंस का यूज़ करके जो इमेज फॉर्मेशन है वो रेटिना
से जो पहले गिरता था उसको हम रेटिना पर पहुंचा सकते हैं, और जो इन मायोपिया और नियर और शॉर्ट साइडनेस है वो जो डिफेक्ट है उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट मायोपिया के लिए रेमेडी एक्शन क्या है? कॉन्केव लेंस ऑफ सूटेबल पावर। सो जो भी हमने डिस्कस किया अभी हम फिर से एक बार मायोपिया के रिगार्डिंग फिर से डिस्कशन करते हैं। मेन पॉइंट, मायोपिया इज ऑल्सो नोन एज नियर साइटनेस। अ पर्सन विथ मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली but it can't see a distance object distantly. Third, for correcting this myopia, myopia concave lens is used. चलो अभी समझते हैं। यहाँ पे ये फर्स्ट जो फिगर है वो नॉर्मल ह्यूमन पर्सन के लिए है। ओके, उसमें यहाँ पे देखो, यहाँ से सपोज रेज आ रहे, रेज लेंस पे गिर रहे, वहाँ पे उसका रिफ्रैक्शन होने के बाद वो जो इमेज जनरेट होती है वो रेटिना पे जनरेट हो रही है। अगर कोई पर्सन को मायोपिया डिसीज़ है, ओके, ये नॉर्मल पर्सन के रिगार्डिंग हमने बात की, अगर उसमें मायोपिया की डिसीज़ है तो ये लाइट रेज आ रहे हैं, लेंस पे गिर रहे, उसके बाद उसका जो इमेज रेटिना पे गिरने के बजाय वो रेटिना से आगे ही फॉर्म हो जाते हैं। उसके कारण ह्यूमन आई कैन नॉट सी अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली। अभी हम उसको कैसे करेक्ट करते हैं? को हम क्या करते हैं? चश्मा लगाते हैं। ओके, चश्मा लगाते हैं मतलब उसमें लेंस यूज़ करते हैं। तो जो भी ह्यूमन है उसको जो मायोपिया है तो उसमें उनके चश्मे में कौन सा लेंस यूज़ होता है? कॉन्केव लेंस होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने कॉन्केव लेंस लगा दिया। अभी कॉन्केव लेंस की वजह से रिफ्रैक्शन होने के बाद जो इमेज रेटिना से पहले गिरती थी वो इमेज रेटिना पे जाके फॉर्म होगी। तो इसकी कॉन्केव लेंस के मीडियम से जो इमेज रेटिना से पहले गिरती थी वो रेटिना पे फॉर्म होगी, जनरेट होगी। तो इस तरह से ये मायोपिया डिसीज़ है उसको हम करेक्ट कर सकते हैं। सो मायोपिया मतलब सिंपल, जो दूर का इंसान नहीं देख सकता तो उसके लिए उसको चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा लगाएगा तो उसमें कौन सा लेंस यूज़ करेगा? कॉन्केव लेंस ऑफ सूटेबल पावर का। नेक्स्ट डिजीज़ इज़ हाइपरमेट्रोपिया, उसको ही बोलेंगे फार और लॉन्ग साइटनेस। इसमें क्या होता है? मायोपिया से अलग है हाइपरमेट्रोपिया। इसमें यह होता है पर्सन कैन सी अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी अ नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली। तो हाइपरमेट्रोपिया में दूर का वो क्लियरली देख सकता है लेकिन नज़दीक का ह्यूमन आई क्लियरली देख नहीं सकता। अ पर्सन विथ दिस डिफेक्ट हैज़ नियर पॉइंट फर्दर अवे फ्रॉम नॉर्मल नियर पॉइंट। तो यहाँ पे जो इमेज जनरेट होती है वो रेटिना से आगे जनरेट होती है। ओके, तो उसके कारण वो नज़दीक का क्लियरली नहीं देख सकता। इन दिस केस इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड रेटिना। यहाँ पे जो ये केस में हाइपरमेट्रोपिया में जो इमेज फॉर्मेशन है वो रेटिना पे फॉर्म होने के बजाय उससे बियॉन्ड, उससे आगे जनरेट होता है। नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दिस हाइपरमेट्रोपिया? दिस डिफेक्ट अराइज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। फर्स्ट, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस बिकम लार्ज। तो जो हमारा आई लेंस है उसका फोकल लेंथ ज़्यादा होने के कारण ये प्रॉब्लम आता है। सेकंड, आई बॉल बिकम टू शॉर्ट सो दैट द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना। तो एक हमारा जो आई लेंस है वो बड़ा हो जाता है और जो आई बॉल है वो छोटा हो जाता है। इसके कारण ये
जो प्रॉब्लम है वो जनरेट होती है. आई बॉल बिकम टू शॉर्ट एंड आई लेंस बिकम अ लार्ज. दैट्स वाई दिस hypermetropia is the problem arise in human eye. Now what are the remedy action for this problem? This तो यहाँ पे भी इंसान नज़दीक का क्लियरली नहीं देख सकता, दूर का देख सकता है. तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी चश्मा ज़रूरी है. ह्यूमन चश्मा लगाता है, लेकिन इसमें क्या होगा, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग, कौन सा लेंस उसमें लगेगा, कॉन्वेक्स लेंस. मायोपिया में कॉनकेव लेंस यूज़ होगा उसको रेमेडिएशन के लिए. हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स लेंस यूज़ होता है ऑफ अ सूटेबल पावर. दिस विल ब्रिंग द इमेज बैक टू द रेटिना. तो उसके कारण हमने अभी कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे, तो उसके कारण जो इमेज बियॉन्ड द रेटिना जनरेट होती है वो बियॉन्ड द रेटिना से आके वो रेटिना पे जनरेट होती है. और इस तरह से ये जो हाइपरमेट्रोपिया का जो प्रॉब्लम है वो उसको हम रेमेडी एक्शन से दूर कर सकते हैं. सो इम्पोर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग हाइपरमेट्रोपिया. हाइपरमेट्रोपिया इज ऑल्सो नोन एज अ फार साइटनेस. A person with hypermetropia can see a distance object clearly, but it can't see a nearby object distinctly. For correcting a hypermetropia, a eye convex lens is used. यहाँ पे जो आप फिगर देख सकते हैं वही तीनों फिगर आपको एग्ज़ाम में ड्रॉ करनी है. तो पहली जो फिगर है, जैसे हमने आगे डिस्कशन किया, नॉर्मल ह्यूमन आई में जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो उसके रिगार्डिंग है. दूसरी जो हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट है उसके लिए फिगर यहाँ पे देखो. अगर हाइपरमेट्रोपिया होगा तो ये रेटिना पे इमेज जनरेट होनी चाहिए, उससे आगे चली जाती है इमेज, यहाँ पे जनरेट होती है. उसके कारण हमको नज़दीक का क्लियरली नहीं दिखता. अभी इसका रेमेडी एक्शन हमने यूज़ कर दिया. कौन सा लेंस हमने यूज़ कर दिया, कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करने से ये जो इमेज यहाँ पे बियॉन्ड रेटिना गिरती थी वो अभी रेटिना पे जनरेट होती है. और इस तरह से हम ये जो प्रॉब्लम है हाइपरमेट्रोपिया उसको हम सॉल्व कर सकते हैं. थर्ड डिफेक्ट ऑफ आवर ह्यूमन आई इज प्रीबायोपिया. नाउ इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ प्रॉब्लम, myopia and hypermetropia. It is found in old people. Presbyopia किसमें होता है, presbyopia is found in old people. For most of the people the near point gradually recedes away with the age. तो जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है उसके कारण जो नियर पॉइंट नज़दीक का देखने की जो उसकी जो कैपेबिलिटी है वो कम हो जाती है. सम टाइम अ पर्सन में सफ़र फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया. तो सम टाइम ये दोनों जो प्रॉब्लम है, मेन डिफेक्ट है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, वो दोनों एक साथ ह्यूमन में आ जाती हैं. तो उसको हम प्री बायोपिया बोलेंगे. ना व्हाट इज़ दिस कोज ऑफ प्री बायोपिया. फर्स्ट वन कि जैसे उम्र बढ़ती है वैसे सिलियरी मसल्स वीक हो जाते हैं. सिलियरी मसल्स वीक हो जाते हैं तो प्यूपिल की जो साइज़ और आई लेंस की जो साइज़ कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांड होनी चाहिए वो होती नहीं है, के कारण प्री बायोपिया होता है. सेकंड, हार्डनिंग और लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ आई लेंस. तो जो उम्र बढ़ती है वैसे जो आई लेंस है उसकी इलास्टिसिटी भी रिड्यूस हो जाती है, उसके कारण प्री बायोपिया होता है. नाउ व्हाट इज़ द रेमेडी एक्शन. दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग बाईफोकल और वेरीफोकल लेंस. तो प्री बायोपिया को दूर करने के लिए हमको जो it is corrected by using bifocal or varifocal lens which is consist of both convex and concave lens. तो वो प्री बायोपिया की
जो डिफेक्ट है दूर करने के लिए हमको ये चश्मा लगाना पड़ेगा। उसमें जो लेंस होता है वो दोनों तरह के लेंस होते हैं, कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। नाउ द अपर पोर्शन ऑफ is consist of a concave lens and lower portion is consist of a convex lens। तो एक ही चश्मे में जो ऊपर का जो ग्लास ऊपर का जो लेंस होता है वो कॉन्केव लेंस होता है। दिस इज इम्पोर्टेंट। ऊपर का जो लेंस होता है वो कॉन्केव लेंस होता है और नीचे का जो लेंस होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। ओके, तो इस तरह से एक ही चश्मे में दोनों लेंस यूज़ करके ये प्री बायोपिया की जो डिफेक्ट है वो हम सॉल्व कर सकते हैं। नॉट दैट हियर नाउ दिस डेज इट इज़ पॉसिबल टू करेक्ट द आई डिफेक्ट विद द कॉन्टैक्ट लेंस और थ्रू अ सर्जिकल इंटरवेंशन। तो अभी के समय में जो ये डिफेक्ट है, ओके, वो चश्मा लगाने के सिवाय भी लेंस डायरेक्ट आई लेंस का यूज़ करके ये रिमूव कर सकते हैं और कोई लेज़र सर्जरी के मीडियम से भी जो चश्मे आते हैं उसको नंबर आते हैं, हम इन रूटीन लैंग्वेज में बोलते हैं, तो जो आई के नंबर आते हैं उसको हम दूर कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट लेंसेज आर सिंपली अ स्मॉल लेंस प्लेस इन अ कॉन्टैक्ट विथ आवर आई विच इज़ अ रिप्लेसमेंट फॉर अ ट्रेडिशनल स्पेक्टेकल्स। तो ये नॉर्मल सिंपली अभी तो सब स्पेक्टेकल्स की जगह पे लेंस यूज़ करने लगे हैं। तो ये जो भी आई की डिफेक्ट है तो वो आई लेंस से रिमूव हो जाती है। वो जो लेंस होते हैं स्मॉल लेंस, और उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट लेंस। तो कॉन्टैक्ट लेंस क्या है? कॉन्टैक्ट लेंस आर अ स्मॉल लेंस प्लेस इन अ कॉन्टैक्ट विथ द आई which is a replacement for the traditional spectacles. So what are the important point of presbyopia? The power of accommodation of the eye is usually decreased with the aging. For most of the people the near point gradually recedes away. They find it difficult to see a nearby object comfortably and distinctly without। तो ये प्री बायोपिया को कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस के दोनों के यूजेस से हम प्री बायोपिया को सॉल्व कर सकते हैं। अभी इन प्रीवियस चैप्टर वी डिस्कस अबाउट लेंस फार्मूला। अब और लेंस फार्मूला क्या है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। वो आप जानते हैं। उसके बेस पे अभी हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे, उसके रिगार्डिंग पहले हम समझते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। देयर आर मैनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम विच आर जनरली बेस्ड ऑन मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया एंड फाइंडिंग द फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ अ लेंस विच इज यूज्ड for the correction of this defect. This problem of this myopia and hypermetropia are solved by using a lens formula। तो lens formula क्या है? 1/f is equal to 1/v minus 1/u, where what is f? f is a focal length of lens। focal length of lens पॉजिटिव कब होगी? जब कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे तब f को पॉजिटिव लेना है। जो f का आंसर अगर पॉजिटिव में आता है तो हमको क्या समझना है? वो लेंस कॉन्वेक्स लेंस है। अगर f का आंसर नेगेटिव में आता है तो हमको क्या समझना है? वो कॉन्केव लेंस है। ओके, सो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग रिगार्डिंग f फोकल लेंथ। अगर f फोकल लेंथ की वैल्यू पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स, फोकल लेंथ की वैल्यू नेगेटिव होती है तो वो कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस है। v क्या है? इमेज डिस्टेंस, और u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो u इज अ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यहाँ पे फॉर्मूला में, और v है इमेज डिस्टेंस। इन द प्रॉब्लम ऑलवेज रिमेंबर दैट फॉर अ हेल्दी ह्यूमन आई द फार पॉइंट इज इनफाइनाइटी एंड नियर पॉइंट इज एटलीस्ट अ डिस्टेंस of a distinct vision, for example 25 सेंटीमीटर।
तो हमारी जो हेल्दी ह्यूमन है उसमें जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर है और जो फार पॉइंट है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस है. So let's take a problem on this discussion. Statement of problem is as follow. A person cannot see the object beyond 3 मीटर distinctly. तो कोई एक पर्सन है वो 3 मीटर के आगे रखा हुआ जो ऑब्जेक्ट है उसको क्लियरली देख नहीं सकता. ओके. State the nature of focal length. State the nature of the focal length of the lens required to correct the defect of vision. तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्टेट द नेचर, तो ये प्रॉब्लम है तो उसमें फोकल लेंथ कितना होगा वो हमको फाइंड आउट करना है. ओके. फॉर द ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड फॉर द करेक्ट ऑफ दिस डिफेक्ट. तो ये डिफेक्ट को सॉल्व करने के लिए कितनी फोकल लेंथ चाहिए वो हमको फाइंड आउट करना है. ना यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है 3 मीटर के आगे का. 3 मीटर के आगे का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u से हम रिप्रेजेंट करेंगे. u इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी लेंगे हम. u इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी लेंगे. इमेज डिस्टेंस यहाँ पे v है. v पर्सन कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 3 मीटर डिस्टिंक्टली. तो यहाँ पे इमेज डिस्टेंस v क्या होगा. v इज इक्वल टू -3 सेंटीमीटर, सॉरी -3 मीटर. -3 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो -300 सेंटीमीटर. यहाँ पे फार पॉइंट है. ओके. और फोकल लेंथ हमको फाइंड आउट करना है. सिंपली वी यूज द लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. 1/f 1/v की वैल्यू क्या है 1/-300. 1/u की वैल्यू क्या है 1/-इन्फिनिटी. तो 1/इन्फिनिटी आपके हो जाएगी 0. तो f क्या बचा 1/f इज इक्वल टू -1/300. सो दैट द वैल्यू ऑफ f इज इक्वल टू -300 सेंटीमीटर. और f इज इक्वल टू -300 सेंटीमीटर मतलब -3 मीटर. अभी यहाँ पे आंसर f का आंसर क्या आया है नेगेटिव में मिला है. नेगेटिव मतलब वहाँ पे लेंस कॉन्केव होगा. ओके. सो अकॉर्डिंग टू द साइन ऑफ दिस फोकल लेंथ द लेंस इज डाइवर्जिंग इन नेचर. तो यहाँ पे लेंस का नेचर कौन सा होगा डाइवर्जिंग इन नेचर. और जो लेंस होगा दैट्स वाई इट इज़ अ कॉन्केव लेंस. तो ये करेक्शन करने के लिए कौन सा लेंस यूज़ करेंगे हम कॉन्केव लेंस यूज़ करेंगे. और फोकल लेंथ है वो -3 मीटर जितनी होगी. आई होप you understand this lecture clearly. Thank you very much.